Hello students, good morning everyone. In this class, we will discuss about the circulatory system. Circulatory system in human beings. इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में we are going to discuss about circulatory system in human beings. As we know that the circulatory system has main three parts. First of all, pumping chambers, pumping organs, which is known as heart, and second is blood vessels, and third is ट्रांसपोर्ट मीडियम दैट इज ब्लड। तो इस क्लास में इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पंपिंग ऑर्गन दैट मीन्स हार्ट। what is the shape of heart, what is the function of a heart, and how does heart work। हार्ट किस तरह से फंक्शनिंग करता है ये हम लोग देखेंगे। नाउ लुक हियर, हार्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स थ्री मेन पार्ट्स। पंपिंग चैम्बर दैट इज नोन एज हार्ट, सेकेंड इज ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड इज ब्लड। Blood is the transport medium because the transportation of material takes place inside the human beings and the animals through the blood. Multicellular animals में including human beings मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह ब्लड के थ्रू होता है। दैट मीन्स ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम इन ह्यूमन बींग्स। First, pumping chamber that is known as heart. Heart. What is the functioning of heart? To pump blood to various body parts. To pump blood to various body parts. Heart, by pumping, exert pressure to flow, to transport the blood to each part of the body. Second is heart is situated in the chest cavity between two lungs. Heart is situated in the chest cavity between two lungs. As we know that there is a gap, there is a cavity present between two lungs. दो lungs के बीच में गैप होता है, वैकेंट स्पेस है, एंड इन द वैकेंट स्पेस हार्ट इज सिचुएटेड। हार्ट दो लंग्स के बीच में जो चेस्ट कैविटी होते हैं उस चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, नॉट प्रॉपर लाइक अ ट्रायंगल बट रफली triangular in shape and is as big as our fist। यह एक ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसकी जो आकार है, इसका जो साइज है वो हमारे फिस्ट के जितनी है। दैट मीन्स वेरी स्मॉल साइज ऑफ द हार्ट, जस्ट लाइक दिस फिस्ट लाइक साइज ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बींग्स। Heart, as we know that it contains both oxygenated and deoxygenated blood. As we know that heart में दोनों टाइप के ब्लड होते हैं। ऑक्सीजनेटेड दैट मीन्स द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, एंड द deoxygenated the blood rich in carbon dioxide.
both types of blood present in the heart, oxygenated as well as deoxygenated. But to prevent the mixing, of oxygenated blood and deoxygenated blood, heart has different chambers so that oxygenated and deoxygenated not mixed together in the heart. Heart has different chambers. ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो इसके लिए हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं. देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट. इन दिस फिगर यू कैन सी एट्रियम. दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. This is right atrium. Right atrium. And this is right ventricle. Right atrium and this is right ventricle. Both ventricles are pumping chambers. In this figure you can see this is pulmonary vein. यह pulmonary vein है जिसके थ्रू लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है. विच टाइप ऑफ ब्लड? ऑक्सीजनेटेड. Oxygenated blood. So remember this, through the pulmonary vein oxygenated blood comes from lungs to the heart. lungs से heart में oxygenated blood आता है through the pulmonary vein. इसके थ्रू pulmonary vein के थ्रू लंग से हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो pulmonary vein के थ्रू आता है. और left ventricle is a pumping chamber. It pumps to exert the pressure. लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पंपिंग चैम्बर है और यह पंपिंग करता है प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए. और यहाँ से ऑर्टा के थ्रू, ऑर्टा दैट मीन्स मेन आर्टरी, So through the main artery or through the aorta, the blood goes to the parts of body. Each part of body तक जो blood पहुंचता है वो main artery के through, that means aorta के through. यानी लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग कर हाई प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और ब्लड जो है मेन आर्टरी के थ्रू, ऑर्टा के थ्रू ईच पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचता है. इन राइट साइड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स द deoxygenated blood is collected and through the vena cava, it comes to the right atrium. वेना केवा के थ्रू, जिसे मेन वेन, वेना केवा को मेन वेन कहा जाता है. मेन वेन के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचता है. राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल इज ऑल्सो अ पंपिंग चैम्बर एंड इट pumps and exert pressure and blood goes to the lungs through the pulmonary artery. तो यहाँ हम देख सकते हैं
कि पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड लंग्स में जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट से जो ब्लड लंग्स में जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स से जो हार्ट में आता है वो ऑक्सीजनेटेड। यानी पुलमोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पुलमोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इज इट क्लियर? वंस अगेन, पुलमोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पुलमोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। हार्ट से जो लंग्स में ब्लड जाते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स से जो हार्ट में आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट से जो बॉडी पार्ट्स में जाता है वो ऑक्सीजनेटेड, हार्ट से जो बॉडी पार्ट्स में जाता है वो ऑक्सीजनेटेड, बॉडी पार्ट से जो कलेक्ट होकर हार्ट में पहुंचता है वो डीऑक्सीजनेटेड। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होते हैं। नाउ सी, heart has different chambers. Function of heart, first of all, to receive oxygenated blood from the lungs. हार्ट क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स। ब्लड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? इनसाइड द लंग्स। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स इन द एल्वियोलाइज, इन द एल्वियोलाई इन द लंग्स। लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड होता है। जो हम ब्रीदिंग के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन इन करते हैं वो एल्वियोलाई में जाकर ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म करता है। तो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से हार्ट में आता है। सेकेंड, टू पंप दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ईच पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेजने का काम करता है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया और ईच पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, पहुंचा दिया। किसके थ्रू? मेन आर्टरी के थ्रू, ऑर्टा के थ्रू। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पॉइंट, टू रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है। ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। टू सेंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट होकर आया, जिसे हार्ट ने रिसीव किया, अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुलमोनरी आर्टरी से, पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? लंग्स को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट किया गया हार्ट के द्वारा, हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को भेज देता है। किसके थ्रू? पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू। फॉर प्यूरिफिकेशन, बिकॉज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स। जो CO2 का रिलीजिंग है वो कहाँ होगा? लंग्स में होगा। यानी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन CO2 इज रिलीज्ड or diffused from the blood and it removes out from the body and
ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड ऑल्सो टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स। तो CO2 का ब्लड से निकलना और O2 का मिक्स होना दोनों प्रोसेस लंग्स में होते हैं, इसलिए लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त किया जाता है हार्ट के द्वारा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के द्वारा लंग्स को भेजा जाता है। There are 4 chambers in heart. The upper 2 chambers are called atria. The lower 2 chambers are called ventricles. Atria are receiving chambers of the heart. Upper 2 chambers, ये जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं जिसे एट्रियम कहते हैं। एट्रियम इज द सिंगुलर टर्म फॉर एट्रिया, एट्रिया इज द प्लूरल। तो लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, 2 एट्रियम होते हैं, और लोअर 2 चैम्बर जो होते हैं ये दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, और इन दोनों को पंपिंग चैम्बर्स भी कहते हैं। एट्रिया आर रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। एट्रिया को रिसीविंग चैम्बर्स भी कहते हैं, क्योंकि एट्रिया का काम ही है ब्लड को रिसीव करना। लेफ्ट एट्रियम लंग से रिसीव करता है, राइट एट्रियम पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिसीव करता है। तो एट्रियम इज द रिसीविंग चैम्बर। लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है, राइट डीऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है।